افغانستان کے اندر 2001 میں سطح سے بے دخل ہو جانے والا طالبان جب اپنے آپ کو یونائٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اندر ہی اندر اپنے آپ کو طاقتور بنا رہا تھا، بلکہ یہ کہیے کہ جب وہ امریکہ کے اوپر اپنی طرف سے پہلا بڑا حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا، تو اس دور میں لوگوں کو یہ لگنے لگا کہ یہ سب دیکھ کر بھلا امریکہ بھی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ امریکہ افغانستان میں اپنی فوج بڑھائے گا، ایڈوانس ہتھیار بڑھائے گا اور ہو نہ ہو اپنی بھرپور مدد سے اس حکومت کو اور اس آرمی کو اور بھی زیادہ طاقتور بنائے گا کہ جس کو ابھی کچھ وقت پہلے ہی افغانستان کے اندر اس نے طالبان کو ہٹا کر خود کھڑا کیا تھا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ امریکہ نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ اس نے جو کیا وہ اس دور میں امریکہ کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی، کیونکہ امریکہ نے اب افغانستان کے اندر ان لوگوں کی بھر بھر کر مدد کرنی شروع کی کہ جو اوپر سے بھلے ہی جدھر بھی ہوں لیکن اندر سے نہ تو وہ امریکہ کی سائیڈ میں تھے اور نہ ہی طالبان کی سائیڈ میں تھے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو افغانستان کے اندر وار لارڈز کہا جاتا تھا، یا اگر اپنی آسان زبان میں کہیں تو آپ لوگ چودھری بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ افغانستان کے وہ چند امیر اور با اثر لوگ تھے کہ جو الگ الگ علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے، ان کے پاس اپنی پرسنل آرمی تک ہوا کرتی تھی اور اسی کے بلبوتے پر یہ اپنے اپنے علاقوں میں راج کیا کرتے تھے۔ 2005، 6 اور 7 کے افغانستان پر اگر آپ لوگ نظر ڈالیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ انڈائریکٹلی اس دور میں یہ پورا کا پورا افغانستان انہی وار لارڈز کے کنٹرول میں ہوا کرتا تھا۔ کسی کے پاس ایک صوبہ تھا تو کسی کے پاس 2 صوبے تھے۔ ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو یہ سارے وار لارڈز وہی تھے کہ جنہوں نے کسی دور میں امریکہ کی سپورٹ سے USSR مطلب کہ سوویت سنگ کے خلاف جنگ کی تھی، مگر رشیا کے ہار کر چلے جانے کے بعد یہ لوگ افغانستان کا کنٹرول لینے کے لیے آپس میں ہی بھڑ گئے تھے۔ جس سول وار کے بارے میں آج ہم سنتے رہتے ہیں وہ دراصل انہی سارے وار لارڈز میں آپس میں ہوئی تھی، اور پھر ایسے ہی حالات میں طالبان کا جنم ہوا تھا جس نے ان تمام کو ہرا کر افغانستان کا 1996 میں کنٹرول لے لیا تھا۔ طالبان کی حکومت آ جانے کے بعد یہ سارے کے سارے وار لارڈز کافی کمزور پڑ گئے تھے، بلکہ طالبان تو کھلے طور پر ان سب کو فسادی اور کرپٹ کہا کرتا تھا۔ لیکن 2001 میں جب امریکہ نے حملہ کیا اور طالبان ایک بار پھر سے سطح سے بے دخل ہو گیا تو یہ سارے وار لارڈز کو دوبارہ سے ترقی کرنے کا موقع مل گیا، اور اب تو جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا کہ امریکہ نے بھی انہی سب کو چن لیا تھا، ان کی بھر بھر کر مدد کرنی شروع کر دی تھی تاکہ امریکہ خود طالبان کی گولی سے دور رہ سکے اور امریکہ کے بہاف پر یہ سارے وار لارڈز طالبان سے جنگ کریں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان سارے وار لارڈز نے امریکہ کے ساتھ بھی کھیل کر دیا، وہ اس طرح سے کہ یہ امریکہ سے ہاتھ تو ملا چکے تھے، اس سے بھر بھر کر پیسوں کی شکل میں خوب مدد بھی لے رہے تھے، لیکن جب بھی طالبان سے جڑی ہوئی کوئی انٹیلیجنس دیا کرتے تھے، کوئی معلومات دیا کرتے تھے تو وہ زیادہ تر غلط ہی ہوا کرتی تھی، بلکہ دی گئی جانکاری طالبان کی بجائے کسی دوسرے ایسے وار لارڈ کے ٹھکانے کی ہوا کرتی تھی کہ جس سے جانکاری دینے والا وار لارڈ نفرت کیا کرتا تھا۔ مطلب امریکی مدد سے اب ان لوگوں نے طالبان سے لڑنے کی بجائے آپس میں ہی جو ایک دوسرے کے خلاف پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی وہ سب برابر کرنی شروع کر دی۔ تو اب ہو یہ رہا تھا کہ امریکہ اب جب بھی ان لوگوں کی طرف سے ملی ہوئی جانکاری کے اوپر کہیں بمباری کیا کرتا تھا، آسمان سے گولیاں برساتا تھا، کہیں خطرناک حملے کیا کرتا تھا، تو ان سب میں نقصان تو بہت ہوتا تھا، بہت سارے لوگوں کی جان بھی جاتی تھی، لیکن نہ تو یہ نقصان طالبان کا تھا اور نہ ہی یہ مرنے والے لوگ طالبان کے ہوا کرتے تھے، بلکہ یہ نقصان اور یہ مرنے والے لوگ یا تو انہی میں سے کسی ایک وار لارڈ کے ہوا کرتے تھے یا پھر نہتے عام لوگ ہوا کرتے تھے۔ ایک کے بعد ایک لگاتار جب ایسا ہوتا رہا تو اس کی وجہ سے اب ہوا یہ کہ جہاں ایک طرف امریکہ کے خلاف افغانستان کے عام لوگوں میں غصہ بڑھتا چلا گیا، اس کی چھوی بری سے بری ہوتی چلی گئی، تو وہیں دوسری طرف اس کے بالکل الٹ طالبان کی چھوی عام لوگوں میں اچھی ہوتی چلی گئی، اور ایسے ہی ماحول میں طالبان کو اور بھی زیادہ طاقتور ہونے کا موقع ملتا رہا۔ فائنلی 2006 کی شروعات میں وہ وقت آ ہی گیا کہ جس کا طالبان نے لمبے وقت سے انتظار کیا تھا، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کی تیاری طالبان بڑے ہی لمبے وقت سے کر رہا تھا، اور جس چیز کو ہی طالبان امریکہ کی 20 سال کی جنگ کا پہلا بڑا ٹرننگ پوائنٹ بھی سمجھا جاتا ہے، اور یہ چیز تھی طالبان کا پہلا ڈائریکٹ حملہ۔ مطلب 2001 میں حکومت کے گر جانے کے بعد پہلی بار امریکہ سے آمنے سامنے کا مقابلہ کرنا، اور اس چیز کی شروعات طالبان نے افغانستان کے مشہور علاقے قندھار سے کی تھی، اور قندھار سے ہی کیوں کی تھی اس کے پیچھے بھی کئی وجہ بتائی جاتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہی تھی کہ افغانستان کے ساؤتھ میں موجود یہ جو قندھار کا علاقہ ہے یہ ہمیشہ سے ہی طالبان کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔
तालिबान के सबसे पहले और बड़े लीडर मुल्ला उमर का घर भी यहीं पर है। और तो और यही वो इलाका है कि जहां से 18वीं सदी में पश्तून लोगों ने मॉडर्न अफगानिस्तान मतलब कि उस अफगानिस्तान की बुनियाद रखी थी कि जिसको आज के दौर में हम देखते हैं। मॉडर्न अफगानिस्तान के फादर समझे जाने वाले अहमद शाह दुर्रानी या जिनको अहमद शाह अब्दाली भी कहते हैं, उनका मकबरा भी यहीं पर मौजूद है। और तो और मुसलमानों के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक चोगा मतलब कि एक कमीज कि जिसके बारे में ऐतिहासिक तौर पर यह दावा किया जाता है कि यही वो चोगा था कि जिसको पहनकर नबी अलैहिस्सलाम मेराज के सफर पर गए थे, वो भी अफगानिस्तान के इसी इलाके में मौजूद एक मजार के अंदर महफूज है। स्क्रीन पर नजर आने वाली इस तस्वीर को आप में से कुछ लोगों ने शायद पहले भी देखा होगा। ये तालिबान के सबसे बड़े लीडर मुल्ला उमर की उन 2-3 तस्वीरों में से एक है कि जो इंटरनेट पर मौजूद है, क्योंकि उसके अलावा तो मुल्ला उमर की ज्यादा तस्वीरें इंटरनेट पर मौजूद ही नहीं हैं। ये 1996 की मुल्ला उमर की वही तस्वीर है कि जिसके बारे में दावा किया जाता है कि उन्होंने हाथ में वही मुकद्दस कपड़ा पकड़ा हुआ है, क्योंकि मुल्ला उमर ने 1996 में इसी कपड़े को उठाकर ही अपनी हुकूमत का आगाज किया था, या आप कह सकते हैं कि अमीरुल मोमिनीन का टाइटल हासिल किया था, और उसके बाद वहाँ के लोगों ने उनके हाथ पर बैत की थी। तो अब किस्सा मुख्तसर ये है कि इन बहुत सारे रीजंस की वजह से तालिबान ने अपनी पहली बड़ी जंग का आगाज यहीं से किया। पिछले 4-5 साल की कड़ी मेहनत के बाद तालिबान अपने इस खास इलाके को कंट्रोल में लेने के लिए पूरी प्लानिंग कर चुके थे। लेकिन जाहिर है जब 2005 के आखिर में और 2006 की शुरुआत में तालिबान हमला करने की पूरी तैयारी कर चुका था, तो दूसरी तरफ अमेरिका भी खामोश बैठा हुआ नहीं था, बल्कि वो इन तमाम चीजों से बाखबर था और उसके पास लगातार तालिबान से रिलेटेड तमाम इंटेलिजेंस भी पहुंच रही थी। उसको तालिबान के बारे में लगभग तमाम जानकारियां मिल रही थीं कि इनके पास फाइटर्स की तादाद कितनी है, ये किस किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं और किस किस चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं और कहां कहां पर हमले कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, दिलचस्प बात तो ये है कि जब बाद में हमला हुआ तो अमेरिका और तमाम नाटो ग्रुप के होश उड़ गए। उसकी वजह ये थी कि उनके पास लगातार तालिबान से जुड़ी हुई जितनी भी खुफिया मालूमात आ रही थी वो सारी की सारी गलत थी। और उससे भी ज्यादा इन लोगों के लिए शर्म की बात ये थी कि खुद तालिबान को भी इस बात का इल्म था कि जितनी भी इंफॉर्मेशन तालिबान से रिलेटेड अमेरिका और नेटो के पास पहुंच रही है वो सारी की सारी गलत इंफॉर्मेशन है। यही वजह है कि तालिबान ने भी इस चीज का भरपूर फायदा उठाया। अब तालिबान ने किया ये कि अपना सरप्राइज और बड़ा अटैक करने से पहले कुछ इलाकों में छोटे छोटे अटैक शुरू किए, ताकि उनके जरिए से ये पता लगाया जा सके कि तालिबान के हमलों की सूरत में अमेरिका और नेटो कैसे जवाब देंगे। मतलब कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इनके पास फाइटर्स मतलब फौजियों की कितनी तादाद है, और इनकी मदद के लिए इनकी सबसे बड़ी ताकत मतलब कि अमेरिका की एयरफोर्स या ड्रोन्स वगैरह कितनी देर में पहुंच जाएंगे और कहां कहां से पहुंचेंगे। तो इसी चीज को टेस्ट करने के लिए तालिबान ने जो सबसे पहला हमला किया वो संगीन नाम के उस शहर पर किया कि जो कंधार और हेलमंद नाम के जो 2 सूबे हैं उनके बॉर्डर के इलाके में मौजूद है। यहाँ पर उस दौर में अफगानिस्तान की उस फौज के सिपाही तैनात थे कि जिस फौज को कुछ वक्त पहले ही अमेरिका ने खड़ा किया था। फरवरी की कड़कती हुई ठंड में एक दिन बिल्कुल तड़के सुबह तालिबान की तरफ से इसी फौज के ऊपर सरप्राइज अटैक किया गया। अटैक होते ही चंद लम्हों के अंदर इस फौज को भी और इसके पीछे मौजूद जो अमेरिका और नेटो था सबको ये समझ आ चुका था कि उनके पास तालिबान से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही थी वो चाहे नंबर से रिलेटेड हो या फिर हथियारों या बाकी चीजों से रिलेटेड हो, वो लगभग सारी की सारी गलत आ रही थी। ये अफगान फौज तो तालिबानी फाइटर्स के सामने संभल भी नहीं पा रही थी। इसीलिए जब इन लोगों ने अपना पूरी तरीके से घिराव होते हुए देखा तो फौरन मदद के लिए अमेरिका और नेटो को सिग्नल भेजने शुरू कर दिए, और कुछ देर के अंदर ही ऊपर आसमान पर अमेरिका और पूरा नेटो ग्रुप अपनी ताकतवर एयरफोर्स लेकर पहुंच भी गया। फौरन ही अमेरिकी फाइटर जेट्स ने खतरनाक बमबारी शुरू कर दी, आसमान से हेलीकॉप्टर्स के जरिए से फायरिंग शुरू कर दी। अब जाहिर है एयरफोर्स अमेरिका का वो ताकतवर हथियार था कि जिसका तालिबान के पास कोई जवाब मौजूद नहीं था। हालांकि कोई भी जवाब न होने के बावजूद भी जो तालिबानी फाइटर्स थे उन्होंने अमेरिका की एयरफोर्स या अफगानिस्तान की इस पूरी फौज को अगले 3 दिन तक इंगेज करके रखा और उनसे लड़ते रहे। और जब 3 दिन के बाद जाकर ये जंग खत्म हुई तो तालिबान के लगभग 40 के करीब फाइटर्स खत्म हो चुके थे, जबकि दूसरी तरफ अफगान फोर्सेस में भी मरने वाले लोगों का आंकड़ा दर्जनों में पहुंच चुका था। अब टेक्निकली देखा जाए तो तालिबान को अपने सबसे पहले हमले में नाकामयाबी मिली थी, क्योंकि जाहिर है वो उस इलाके को कंट्रोल में लेने में नाकामयाब साबित हुए थे कि जिसको कंट्रोल में लेने के इरादे से गए थे। लेकिन दूसरी तरफ इसी हमले ने अमेरिका और 42 देशों के उस ग्रुप को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया था कि जिनको लग रहा था कि उनके पास तालिबान से जुड़ी हुई तमाम इंफॉर्मेशन है और
तालिबान अभी इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है। यही वजह थी कि इस हमले के फौरन बाद अमेरिका हड़बड़ाहट में आ गया था और उसने फौरन ही नई तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू की और फौरन ही एक नई प्लानिंग के तहत मई 2006 में ही तालिबान के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया, ताकि तालिबान के जो अब वाकई खड़ा हो चुका है उसको शुरुआत में ही पूरी तरीके से कुचल दिया जाए। अमेरिका की तरफ से इस ऑपरेशन में अपने लगभग सारे ही एडवांस फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया। जिस इलाके को लेकर भी ये शक होता कि यहाँ पर तालिबान के ठिकाने हो सकते हैं, वहाँ पर खतरनाक बमबारी कर दी जाती, और जिस इलाके को लेकर ये शक होता कि यहाँ पर तालिबान से जुड़े हुए फाइटर्स मौजूद हो सकते हैं, तो वहाँ पर फाइटर जेट्स की मदद से ही अमेरिका की जो स्पेशल फोर्सेस हुआ करती थी उनको उतार दिया जाता था। मगर दूसरी तरफ जाहिर है तालिबान भी पहले से ही जानता था कि अमेरिका की तरफ से ये सब कुछ किया जाएगा, बल्कि उसने तो जो अपना पहला छोटा हमला किया था वो इन्हीं सारी चीजों को ही तो टेस्ट करने के लिए किया था। तो इसीलिए जैसे ही अमेरिका ने ये बड़ा ऑपरेशन शुरू किया, उसने फौरन ही कंधार के इलाके में अपना मेन ऑफेंस लॉन्च कर दिया। कंधार सूबे के आसपास के जितने भी छोटे बड़े इलाके थे उन सब में अब खुलेआम तालिबान की तरफ से हमले होने लगे। साल 2001 मतलब तालिबान की हुकूमत गिर जाने के बाद ये पहला मौका था कि जब तालिबान और अमेरिका की आमने सामने जंग हो रही थी। साथियों, तालिबान का ये ऑफेंस और अमेरिका का ये स्पेशल ऑपरेशन ऐसे ही अगले कई महीनों तक चलता रहा। दोनों तरफ से खून बहता रहा और फिर 2006 के अगस्त सितंबर के महीने में जाकर जब ये खत्म हुआ तो ऑलरेडी तालिबान की तरफ से लगभग 1000 से भी ज्यादा फाइटर्स खत्म हो चुके थे, जबकि दूसरी तरफ भी अमेरिका के 98, ब्रिटेन के 39 और बाकी देश के जो इस जंग में अमेरिका का साथ दे रहे थे उनके भी मिला लिए जाएं तो टोटल 191 लोग मारे गए थे। टेक्निकली देखा जाए तो तालिबान और अमेरिका की ये पहली बड़ी जंग बेनतीजा रही थी, या आप कह सकते हैं कि दोनों ही तरफ के लोगों ने काफी कुछ खो दिया था, क्योंकि ना तो तालिबान वो सारे इलाके सही तौर पर हासिल कर सका था कि जिनको हासिल करने के लिए ही उसने ये ऑफेंस लॉन्च किया था, और ना ही अमेरिका साउथ के इलाके में जो तालिबान दोबारा से खड़ा हो गया था उसको कुचलने में कामयाब हो सका था। बल्कि तालिबान तो उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर साबित हुआ था कि जितना ताकतवर होने की उनको लगातार इंफॉर्मेशन मिल रही थी। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात ये भी है कि 2006 की ये जंग बेनतीजा जरूर रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इस जंग का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि पूरे इन 20-21 सालों में सबसे ज्यादा असर अगर किसी चीज ने डाला था तो वो 2006 की यही जंग थी, क्योंकि इसके बाद तालिबान और अमेरिका की इस जंग में मानो सब कुछ बदल गया था। सबसे पहले बदलाव की बात करें तो वो तो ये था कि तालिबान को अब समझ आ चुका था कि उनके सामने ये अफगानिस्तान की नई आर्मी तो कुछ भी नहीं है, और हाँ वो अमेरिका और नेटो की फौज का भी जैसे तैसे मुकाबला कर ही सकते हैं, मगर हाँ वो एक हथियार के जिसके सामने वो बिल्कुल भी नहीं टिक सकते हैं, वो कुछ और नहीं बल्कि अमेरिका और नेटो की एयरफोर्स है। इसीलिए उन लोगों ने अब अपना जंग करने का तरीका ही बदल डाला। इसके बाद वो लोग कभी भी 2006 की तरह खुलेआम जंग लड़ने के लिए नहीं आए, बल्कि अब वो करने ये लगे थे कि जितनी भी अमेरिका या नेटो की अहम लोकेशंस होती थी उनको टारगेट पर लेते थे और वहां पर धमाके करते थे, या इसके अलावा कभी कभी बिल्कुल पुराने ही गुरिल्ला वाले अंदाज में कहीं पर फौरन हमला करते और वहां से निकल लिया करते थे। मतलब इसके बाद अब तालिबान ने अमेरिका के खिलाफ खुले आसमान के नीचे आना बंद कर दिया था, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ऐसा करना बेवकूफी होगी। जबकि अगर दूसरे बदलाव की बात करें तो वो अमेरिका की तरफ से देखा गया। वो बदलाव ये था कि अमेरिका और नेटो की वो फौज के जो 2006 तक पूरे अफगानिस्तान में इधर उधर टहलती रहती थी, हिफाजत के नाम पर हर जगह पर मौजूद रहती थी, अब उसने ऐसा करना बंद कर दिया था, बल्कि वो अब या तो सिर्फ मिलिट्री बेसिस पर रुका करते थे या फिर ऐसे शहर के जहाँ पर अमेरिका का स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था उस शहर की स्पेसिफिक जगह पर ही रुका करते थे। इवन हालात तो ऐसे हो गए थे कि अगर ये कभी किसी खुली जगह पर या आम जगह पर हुआ भी करते थे और वहाँ पर इनको कुछ तालिबानी फाइटर्स इधर से उधर जाते हुए नजर भी आ जाते थे तो ये लोग इग्नोर कर देते थे। अब अगर तीसरे बदलाव की बात करें तो वो था नेटो के अंदर टूट पड़ना। दरअसल 2006 की इस आमने सामने की जंग के फौरन बाद दुनिया के सामने जैसे ही ये क्लियर हुआ कि तालिबान तो हद से ज्यादा ताकतवर हो चुका है, वैसे ही जो नेटो के देश थे उनमें टूट पड़ गई। नेटो के ज्यादातर देश अपने फौजियों को अफगानिस्तान की जमीन पर भेजने से कतराने लगे थे। वो कहा करते थे कि हम अफगानिस्तान में अपने फौजियों को सिर्फ इसी शर्त पर भेज सकते हैं कि अगर उनको जंग के मैदान से दूर रखा जाए, मतलब उनको मिलिट्री बेसिस वगैरह पर रखा जाए, दूसरे काम लिए जाएं, लेकिन गोली का मुकाबला न करवाया जाए। सिर्फ यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे 3-4 देशों को छोड़ दिया जाए तो डायरेक्ट जंग में अमेरिका का कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं था। और ये सब कुछ इसीलिए हो रहा था क्योंकि 2001 के बाद पहली बार दुनिया को अफगानिस्तान की जमीनी हकीकत का
पता चल चुका था। इसीलिए यहाँ पर उस चौथे बदलाव का जिक्र करना भी ज़रूरी है कि जो 2006 की इस जंग की वजह से आया था, और वो बदलाव ये था कि अमेरिका को पहली बार ये रियलाइज़ हुआ कि शायद उसको तालिबान के साथ टेबल पर बैठना चाहिए, मतलब तालिबान के साथ अब बातचीत करना चाहिए। और अमेरिका को इस बात का एहसास इसीलिए हुआ था क्योंकि अब एक्सपर्ट्स खुलकर ये कहने लगे थे कि 2006 की जंग से तो ये समझ में आता है कि अमेरिका जैसे ही अफगानिस्तान से निकलने का इरादा करेगा, तालिबान दोबारा से अफगानिस्तान को कंट्रोल में ले लेगा। मगर साथियों, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि अमेरिका ने जैसे ही तालिबान के साथ बातचीत करने का फैसला किया, उसके साथ टेबल पर बैठने का फैसला किया, वैसे ही इसी बातचीत के नाम पर अफगानिस्तान के एक आम से इंसान ने उनके साथ वो धोखा किया कि जिस धोखे को शर्म की वजह से अमेरिका आज तक दुनिया से छिपाता फिरता है। वो धोखा क्या था और आगे क्या क्या हुआ, ये सब कुछ जानेंगे, मगर आज नहीं बल्कि अपनी इस तालिबान अमेरिका वॉर सीरीज के अगले पार्ट में। तो इसीलिए अब आप लोग कुछ करें या ना करें, लेकिन नीचे मौजूद जो सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर प्रेस करें। पास ही में मौजूद जो बेल आइकन है, मतलब कि घंटी का बटन, उसको भी जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही इस सीरीज का अगला पार्ट आए तो आप लोग मिस ना कर सकें। बाकी ये वीडियो भी अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।